ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ 1430 ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੀਵ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਬਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਬੱਚੇ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੋਇਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਧਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ 5 ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੱਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ
मत है, महापुरुषों की अपनी है, कमेटियां की अपनी है, पिंडां में जिहड़े पाठी सिंह ने उन्हां दी अपनी है। अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार गुरु की पूजा, गुरु का जस किया जाता है। दुआबे की धरती तो माण है, महात्मा लोगों की इत्थे घाट नहीं। खास करके मालपुर का इलाका, हुशियारपुर की धरती, जिन्हें साधु महात्मा इत्थे होए ने, वो शायद ही पंजाब की किसी धरती ते होए होण। कोई नगर पिंड ऐसा होवेगा जिथे ना होवे कोई साधु महात्मा, नहीं तो किसी न किसी धर्म नाल संबंधित साधु महात्मा हरेक पिंड विच होए हैं। दुआबे की महान हस्ती संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वाले, उन्होंने दी चलाई हुई मर्यादा है, जिस मर्यादा के अनुसार सहज पाठां के भोग पाए गए हैं। गुरबाणी विच सिख मत दिती है, ठीक है, भावें खुशी का समा भी होवे, ज्ञान तो खुशी के समय तो भी लिया जा सकता है, तो ज्ञान दुख के समय तो भी लिया जा सकता है। ज्ञान तो एक मनुख को समझाउणा है। जिहड़ा मनुख ज्ञान लैके संसार विच परमेश्वर की मत अनुसार तुरदा है, उसकी पूजा परमेश्वर वांगर हुंदी है। जिद्दां कोई किसी का पुत्र पिता वांगर कर्म करन लग जाए, दुनिया के लोग कहण लग जाते पिता वर्गा ही निकलिया, उहदे वर्गा ही है। इस तरह कोई गुरु नानक की मत लैके, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की मत लैके उस अनुसार संसार में तुरे, दुनिया उन्होंने भी गुरुआं पीरां वांगर मनदी है। जिहड़ी पूजा गुरमत दी है, मनमत की पूजा नहीं। मनमुख लोग बड़े हुए ने दुनिया के अंदर, जिहड़े मन के अधीन होकर चलते हैं, पर जिहड़े गुरु की मत के अधीन होकर चलते हैं, भावें जीवन में उन्होंने किन्ने भी कष्ट सहारने पे, उन्होंने गुरु की मत नूं त्यागना नहीं किया, गुरु की मत के अनुसार चले। बाणी किस तरह पढ़नी है, गृहस्थ जीवन किस तरह जीवना है, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में दस्या है। साधु किस तरह का होना चाहिए, साधु की क्रिया कैसी होनी चाहिए है, वह भी गुरु ग्रंथ साहिब में दस्या होया। बड़े नाम ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के, संत है, साध है, ब्रह्म ज्ञानी है, भगत है, गुरमुख है, गुरसिख है, अनेका नाम ने धार्मिक पक्ष के अंदर। सत्कारत अहुदियां के नाम ने, वो किसी भी सत्कारत अहुदा हरेक मनुख नूं नहीं दिता जा सकता, जिन्हां दे अंदर वो गुण प्रवीण हुंदे हन। उन्हां गुणां कारण उन्हां मनुखां नूं नाम दिता जाता समाज के अंदर। कोई पुरख चंगे कर्म करता होवे पिंड के अंदर, किसी नूं मंदा ना बोलता होवे, अपनी किरत करके खांदा होवे, चोरी ना करता होवे, निंदिया चुगली ना करता होवे, सहज सुभाव ही लोग कहते भी ये तो देवता ही है, ये तो साधु है, संत है, ਇਹਦਾ दुनिया ना कोई लगा नहीं रखता, किसी ना कोई वाधी घाटी नहीं करता, किसी ਨੂੰ ਮੰਦਾ नहीं बोलता, किसी का दिल नहीं दिखाता। कर्मां के मुताबिक ही मनुख ਨੂੰ नाम दिता जाता है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने अपनी पवित्र बाणी विचित्र नाटक भी दर्ज किया है। साध कर्म जे पुरख कमावै, नाम देवता जगत कहावै। साधां वाले कर्म कोई करन लग जाए, दुनिया उन्होंने देवता कहन लग जाती। कुकृत कर्म जे जगमों कर ही, असुर नाम तिन्हों को तर ही। जे कोई गलत कर्म करन लग जाता, दुनिया उन्होंने राक्षस कहन लग जाती। रावण ब्रह्म बेता सी, 4 वेदां दा जाणू सी, पर उन्होंने दुनिया ने भगत नहीं कहा, उन्होंने साधु संत नहीं कहा। ब्राह्मण तो जाति नाल संबंधित ब्राह्मण सी। कंस दे काम देख के दुनिया उसनूं माड़ा कहण लग गई। भगवान कृष्ण नूं संसार में अज पूजा हुंदी है, कंस नूं दुनिया माड़ा गिणदी है।
औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह सी, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਖੋਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਖੋਰੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਖੋਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਖਿੱਧ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਦਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਚਮੇਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 4 ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਵਾ ਮਣ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਆਸਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਜਾ ਬੜੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਨੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ 5-7 ਡੰਡੇ ਉਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜਾ ਜੇ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 15 ਜਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਇਹ ਸੇਜਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਡੰਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸੇਜਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀਂ ਲੋਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਟਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ,
एक बंदियां कोल आटे में लूण पाउण वास्ते भी पैसे नहीं हैं। अगे गए सवापसन चोटां खासी कौन। शेख फरीद साहब कहते अगे जाके पता लगेगा इन्हां चों सज़ा किहनूं मिलदी है, सज़ा दा भागी कौन है। इत्थे तां सुख मनुख माण लैंदा है। अगे जाके दो लोक ने, लोक ते परलोक गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखे ने, भावें नास्तिक पुरख मनण जां ना मनण, पर गुरबाणी इस गल नूं मनदी है। भावें मुसलमान मत नहीं मनदा, पर बाबा फरीद साहब ने यह गल मन्नी है। वो राजे नूं इस गल दा सुण के मन दे विच बड़ा बराग होया। वो राजा अपना राज छड्ड के जंगल नूं तपस्या करन चले गए। तपस्या करदियां करदियां किन्ना समा बीत गया। एक दिन किसी नगर के बंदे ने राजे नूं देखिया उत्थे जंगल विच एक नहर के कंढे ते, नहर तां चलो उदों नहरां तां नहीं हुंदियां सन, कोई नदी का किनारा कह लो, उहदे कंढे ते उहने अपनी झुग्गी बनाई हुई सी। उत्थे राजा तपस्या करदा सी। उहने जाके राजे दे मुंडे नूं दस्सिया, इब्राहिम आदम बादशाह जिहड़ा सी उहदे राजे दे मुंडे नूं दस्सिया कि तूं इत्थे राज दे सुख आनंद माण रहा है, तेरा पिता उत्थे जाके देख उहदा की हाल है जंगल विच। जिहदे पे दे बुरे हाल होण उहदा पुੱਤ दा सुख लैण दा की फायदा। उहदा मुंडा फिर अपने नौकर चाकर नाल लैके जंगल विच दसी हुई जगह ते राजा इब्राहिम दे कोल गया। जाके उन्हें अपने पिता नूं मत्था टेकिया, कहन लग्या पिता जी चलो घर नूं चलो, उत्थे बड़े सुख ने, जे तुसी भजन भी करना है, रब की बंदगी भी करनी है, उत्थे कर सकते हो। दुनिया के लोग मैनू टिकण नहीं दिंदे, इस करके मेरी बेनती है, बेनती प्रवान करो तो मेरे नाल चलो। इन्नियां गल्लां करदियां करदियां राजे ने एक सूई नदी दे विच सिੱਟ दित्ती। वो सूई दे नाल वो अपनी गोदड़ी नूं टांके लाउंदा सी। जिहड़े उहदे कपड़ा माड़ा मोटा पाट जांदा सी, उहने सूई कोल रखी हुई सी, उहनूं टांके ला लैंदा सी। वो अपने मुंडे नूं कहण लग्या काका इदां कर, ए सूई पानी विचों कढ दे, फिर चलदे हैं। वो मुंडे ने कहा सूई की करनी, उत्थे राज विच आपां को अनेकां इदां दीयां सूईयां, असीं की करनी, रहण दिओ। और राजा बोलिया काका जी नूं नाल लैके तुरीए, उहदी लाज हुंदी है। जदों मैं घरों तुरिया सी, सूई मैं लैके तुरिया सी, किते कपड़े पाट जांदे, टांके लग जांदे, ये तू इत्थों इहनूं कढ दे तो फिर इकट्ठे ही चलदे। राजे ने अपने सिपाहियां नूं कहा भाई देखो कोई सूई कढो। जिथे सूई सिੱਟੀ सी उत्थों बड़ी कोशिश की, सूई ना मिली। राजे ने इनाम भी रखिया भी सिपाही जिहड़ा कढ दो उन्हें इन्ना इनाम भी देवांगे, पर वो सूई ना मिली। जब सूई ना मिली तो राजे नूं उहदा पुत्र कहण लग्या पिता जी सूई तो नहीं मिलनी, चलो तुसीं साडे नाल। इतिहास दसदा है राजे ने आवाज़ मारी, ऐ मच्छियो मेरी सूई पानी में डिग गई, चक के फड़ा दिओ। एक मच्छी ने मूँह में सूई फड़ के उपर नूं मूँह कर दिता। राजे ने सूई फड़ ली। राजा अपने पुत्र नूं कहण लग्या, कहंदा काका जिन्ना कि तेरा राज है, हो सकदा तेरे राज विच भी सारे तेरा हुक्म ना मनदे होण। जरूरी नहीं राजा जिस मुल्क का होवे सारे उहदा किहा मनदे होण। थोड़े बंदे हुंदे आ नाल जिहड़े किहा मनण वाले हुंदे आ। ए देख ला तेरा किहा तो बंदे भी नहीं मनदे होणे, मेरा किहा 84 लख जून दे जिन्ने जीव है सारे मनदे आ। 184 मेद नहीं सब सेव करंदा, ये बैरी मित्र सब कीतियां ने मंगे मंदा। 785 साल बाबा बुढ़न शाह जी ने कीरतपुर साहिब तपस्या की है। उन्हों का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हों का जोड़ा आसन सी उत्थे रिछ हर रोज़ झाड़ू मारदा सी। हाथी थले नदी तो पानी लिया के सुंड विच भर के उन्होंने आसन ते छिड़कदा सी।
और शेर उन्हां दे उत्थे पहरा दिंदा सी और बकरियां चार के लियाउंदा सी। ये जिहड़े परमेश्वर की बंदगी वाले पुरख हुंदे आ, 84 लख जोन उन्हां दा हुक्म मनदी आ। जिन्हें मार खोरे जानवर है, जीव जंतु है, सारे उन्हां दे हुक्म विच रहिंदे आ। एक संत नारायण दास होए है, अदासी मत नाल संबंधित होए है। वो अपने लंगर दे विच लकड़ियां जंगल तो लिया के लंगर चलाउंदे हुंदे सन। बौलद जोड़ के लंगर नूं लै बाहर जंगल नूं लै जाना ते बालन वढ के ले आउणा। एक दिन जंगल में शेर निकलिया, उन्हें जोर दी बोलिया, संतां दा बौलद नੱਠ गया। संतां ने शेर नूं कन्नों फड़ के गड्ढे नूं जोड़ लिया और बालन दा भरिया होया गड्ढा लिया के डेरे संतां ने शेर नूं छड्डिया ते शेर दे कंन विच एक गल कही। कहण लगे, अगे तो साडा बौलद इदां तूं नठाया तां सारी जिंदगी तैनूं डेरे दा बालन ढोना पवेगा। वो शेर फिर जंगल छड्ड के दौड़ गया। ये तुसीं कई जगह ते फोटो देखी भी होनी आ। संत नारायण दास ने शेर गड्ढे नूं जोड़िया होया। 84 लख जीव जिहड़े परमेश्वर की बंदगी करते आ, उन्हां दे हुक्म विच हो जाते आ। जिहड़ा परमेश्वर के हुक्म नूं मनण लग जांदा उहदा दुनिया हुक्म मनण लग जाती है। जिहड़ा परमेश्वर के हुक्म तो मनण तो मुनकर हो जाता, उहदे अपनी औलाद भी उहदा कहा मनदी नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी का मन्निया नहीं तो उहदा कहा कोई मनदा नहीं है। गुरबाणी कहती है, तू गुरबाणी के अनुसार चल। जिन्हां ने अपना जीवन गुरबाणी के अनुसार गुजारिया दुनिया के अंदर, उन्हां साधु महात्मा के मगर दुनिया जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर। एक अब घट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। सो ये बंदगी करने वास्ते, नाम जपण वास्ते प्रेरणा दी है गुरु ग्रंथ साहिब विच। मनुख ने की कर्म करना है, की नहीं करना है, वो ज्ञान सारा बख्शिया है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। थोड़े समय वास्ते विचार करनी है। ठीक है, भावें तुसीं खुशी के समय ते इकट्ठे होए हो गुरमुखो, खुशी हद तक सीमित रहिंदी है, हद तक सीमित भी रखी दी है। सदा खुशी नहीं हुंदी ते सदा गमी भी नहीं हुंदी। सदा संसार विच मनुख का जीवन एको जिहा नहीं हुंदा। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरनां च आके कोई ना कोई अपने भले की गल मनुख नूं ग्रहण कर लेनी चाहिए है। जिहड़ा मनुख गुरु की गल नूं सुणदा उहदी सारी दुनिया सुणदी है। ये तो गल जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी की नहीं सुणदा उहदी कोई नहीं सुणदा। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी भावें अज धार्मिक पक्ष के अंदर बड़ी वड्डी गिरावट आई है। सिख पंथ के बड़े बड़े डेरे खाली हो गए, महात्मा लोगों के डेरे खाली हो गए, पिंडां नगरां विच बाणी पढ़न वालियां दी घाट आ गई। होर कलयुग का समा है। राजे पाप कमामदे उल्टी बाड़ खेत को खाई, बाजों गुरु गवार है कर दी सुने लकाई। सारा संसार हाहाकार मची हुई। यही समा जदों गुरु नानक साहिब जी आए उदों भी यही समा वरतदा सी, अज भी वही समा है। भावें कलयुग के दौर के अंदर दुनिया संसार के सुखां तक सीमित होकर रह गई है। इस गल का ज्ञान नहीं भी मैं किन्ना चिर संसार में रहना तो उस तो बाद मैं कित्थे जाना, की करना, मैनू अगे की सज़ा मिलूगी, की सुख मिलूगा। ये सारिया गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखियां हुई ने। जिन्हां दे मन की भावना हुंदी है, मन के अंदर इच्छा हुंदी है, गुरु की गल सुनिए, अपने जीवन के सवासां नूं भी सफला करिए, तो जिहड़े जीवन के सुख है वो भी प्राप्त हो जाते हैं। इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जां के वस है काम तेना। परमेश्वर इच्छा तो पूर्ण करता है। इस गल नूं परमेश्वर मनदा भी है भी तू मेरे कहा मन, मैं तेनों सारे सुख दे दूँगा, मैं तेरे सारे कारज सवार दूँगा, एक काम तू कर।
गुरु अमरदास महाराज की पवित्र बाणी में जिक्र किया है उन्होंने, अंगीकार वो करे तेरा। परमेश्वर मानदा है, अंगीकार करदा ये गल नूं। अंगीकार वो करे तेरा, कारज सब सवारना, मैं तेरे सारे काम सवारूंगा। सबना गल्लां समर्थ स्वामी, तू भी एक गल कर, सो क्यों मनो वसारे। तू उन्होंने मनो ना वसार, जे तू मनो वसारूंगा तेरे कदम अधूरे रह जाणगे। जे तू मन दे ना वसारूंगा तेरे सारे कारज परमेश्वर संपूर्ण करूगा। इस गल नूं जे मन के मनुख तुरे तो संसार में उन्होंने दुख कोई है ही नहीं है। जे दुख कोई आउंदा भी तो वो अंदर कट्टण की समर्था बन जाती है, वो आत्मा बलवान हो जाती है। बाणी का आसरा है। ठीक है, संसारी कारज करदियां किरत करनी जरूरी है, पर किरत करदियां करदियां मनुख नूं धार्मिक पक्ष भी उन्ना ही जरूरी है जिन्हें मनुख नूं भोजन खाण की जरूरत है। जिन्हें मनुख नूं पानी तो बिना मनुख जी नहीं सकता, उन्नी जरूरत मनुख नूं परमेश्वर दे नाल जुड़न की जरूरत है। इस करके सोही राग दे अंदर हुक्मनामा जो सतगुरु जी ने बख्शिश किया, जिन्नी क मत बुद्धि महापुरुषों ने बख्शी है, उस मत बुद्धि के अनुसार आप संगत नाल विचार करनी है। ये विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी की जेड़े मन ला के सुनते उन्होंने की दर्जा दिता गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, जेड़े नहीं सुनते उन्होंने की दिता। ਜਿਹੜੇ गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचार सुनते हैं ਜਾਂ धार्मिक पक्ष की विचार सुनते हैं, ਜਾਂ किसी होर धर्म के अंदर भी धार्मिक पक्ष की विचार है। ये नहीं धर्म कोई नहीं माड़ा, हिंदू भी होण मुसलमान भी होण, धार्मिक गल तो एको ही है। क्योंकि धर्मां दे विच सारियां गल्लां साझीआं ने, सच बोलना सारे धर्मां विच है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी सारे धर्मां विच है, किसी की चीज़ चोरी नहीं चकनी, किसी का हक नहीं खाना सारियां धर्मां विच है, झूठ नहीं बोलना सारियां धर्मां विच है। इस करके धर्म कोई नहीं माड़ा है, उहदे विचों धार्मिक पक्ष की गल जिहड़े मनुख के भले वास्ते है वो ग्रहण करनी मनुख वास्ते जरूरी है। कोई चंगी गल मुसलमान दस देवे अपने भले वास्ते ग्रहण कर लवे, कोई चंगी गल सिख दस देवे ग्रहण कर लवे। चंगी गल नूं ग्रहण करना बहुत चंगी गल है। मनुख के अंदर गुण इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हां गुणां नूं इकट्ठे करदियां करदियां मनुख गुणां दा तार नहीं होण करके जिहदे अंदर ज़्यादा गुण हुंदे उहदी कीमत ज़्यादा पै जांदी है। जिहदे अंदर गुण घट हुंदे आ, एक मझ है, मझ दे विच ज़्यादा गुण होण उहदी कीमत मंडी विच ज़्यादा पैंदी है। ते एक मनुख है उहदे विच ज़्यादा गुण है, एक मनुख पढ़िया लिखिया है, पढ़िया लिखिया तो उहदे विच कोई खेडण दी समर्था है, वधिया खिडारी है, इदां गुण वधदे चले जाते हैं। उन्हां गुणां की कीमत है समाज के अंदर। धार्मिक पक्ष की भी समाज के अंदर मनुखों के अंदर एक गुण है बड़ा। जिन्हां मनुखों के अंदर धार्मिक पक्ष सी उन्होंने अज तक दुनिया जानती है। जिन्हां के अंदर धार्मिक पक्ष नहीं सी, कुछ हद तक वो दुनिया चेते करती रही, बाद में उन्होंने नाम मिट जाते हैं। एक महात्मा लोगों ने प्रमाण दिता, कहन लगे मेरे मन की भावना सी दुनिया मैनू जान लवे, मैनू दुनिया दे विच मैनू दुनिया लोग जानन लग जाण। कहंदा मैं ये सोच के जिथों रस्ते विच लोग लंघदे सी उत्थे रस्ते विच अपना नाम लिख दिता, लोग मेरा नाम पढ़नगे मैनू जान लैणगे। कहंदे वो नाम फिर लोग लंघदे गए, नाम मिट गया, थोड़े चिर बाद नाम मिट गया। कहंदा फिर मैं सोचिया एक दरख्त सी सड़क के कंढे ते खड़ा, दरख्त के उत्ते नाम उकर दिता, लोग इत्थों नाम पढ़ लैणगे ते मैनू जानन लग जाणगे। ऐसा समा आया, नेरी बगी, वो नेरी नाल दरख्त डिग गया तो वो नाम खत्म हो गया। फिर वो मन च विचार आई, एक पत्थर की सैल ते उन्हें नाम उकर दिता, पत्थर की सैल ते उकर दिता भी ये तो नहीं मिटेगा। ऐसा समा बनया भुचाल दे नाल, पहाड़ की उथल पथल हुई, वो सैल गुम हो गई। फिर उसने किसी महात्मा नूं पुछया, महात्मा कहन लगे
तू अपना नाम दुनिया के दिलों ते लिख दे। दुनिया के दिलों ते लिखिया होया नाम मिट नहीं सकता कभी भी। वो दुनिया के दिलों ते नाम लिखिया जिन्होंने जिन्होंने धार्मिक पक्ष को ग्रहण किया, दुनिया के दिलों ते लिखे गए। प्रहलाद है, वह नाम दुनिया के दिलों ते लिखिया गया। अज 5 साल का उदों बच्चा सी जदों उसनूं हरनाकश ने मारन की कोशिश की सी, उन्होंने दुनिया जानती है। बड़े बड़े धार्मिक पक्ष के अंदर जय देव नामा बिप सदामा तिन को किरपा पई है पार। सदामा गरीब परिवार नाल जिहदे घर रोटी भी खाण नूं है नहीं सी, उहदा भी नाम दुनिया के दिलों ते लिखिया गया। तारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याद अजा मल तारी ले। गनका पापण सी, परमेश्वर का नाम जपिया, दुनिया के दिलों ते नाम लिखिया गया। अज सारी दुनिया उसनूं जानती है। किन्ने भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच है। सारे भगतां ने परमेश्वर दे नाल मिल के प्रेम किया, उन्होंने दुनिया प्रेम करन लग गई। जिन्हों ने परमेश्वर नाल विरोध किया, उन्होंने दुनिया विरोध करन लग गई। तीजा युग अज हो गया। त्रेते युग विच राम जी नाल रावण ने बैर किया, अज तक दुनिया ने उन्होंने माफ़ नहीं किया। राम गयो रावण गयो। रावण के अंदरों राम का प्रेम चलिया गया तो रावण नाले ही चलिया गया। जां को बहुत परिवार, वो परिवार भी बहुत सन, 1 लाख पूत सवा लख नाती। उन्होंने दुनिया के लोग चंगा नहीं अज तक भी गिणते। जिन्हें परमेश्वर ने प्रेम किया उन्होंने अज तक दुनिया याद करती है। बहुत भगतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच है, बहुत गुरसिखां की बाणी है। आम नगरां पिंडां विच बड़े बड़े महात्मा बंदगीबान, रब नाल प्रेम करन वाले, परमेश्वर नाल प्रेम करन वाले, निरंकार नाल प्रेम करन वाले, उन्हां दा जिक्र संसार विच उन्हां नूं दुनिया चेते करदी है, मगरों भी दिन मनाउंदी है। सो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, पवित्र बाणी, जिन्हां ने विचार सुनी है। आम दुनिया में जिहदे कोल धन ज़्यादा होवे ते उन्होंने दुनिया धनी गिणदी है। धार्मिक पक्ष के अंदर उन्होंने धनी नहीं गिणिया जाता। धार्मिक गुरु अर्जन देव महाराज कहते राम नाम जो करे विचार से धनवंत गनी संसार। वो दुनिया में धनी गिने गए। पूरे ते प्रधान सुनते हर कथा, संतां संग उधार सगला दुख लथा। वो प्रधान पुरखों विचों गिने जाते हैं जिहड़े परमेश्वर की कथा नूं सुनते हैं, परमेश्वर की कथा की विचार करते हैं। बिंद्रावन एक बहुत पवित्र स्थान है, भगवान कृष्ण जी के नाल संबंधित है। उत्थे एक महात्मा का डेरा है। वो महात्मा का एक सेवक सी। वो महात्मा ने जदों कथा करनी तो उन्हें भांडे मांजण लग जाना। संतां ने उन्हें कहा रामदासा जदों रब की गल चलती हो विच रौला नहीं पाईदा। वो बंदा ज़्यादा दोषी है जिहड़ा रब की गल सुन नहीं दिंदा किसी नूं। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने भी लिखी है गल, हर जस करते बात चलावे कहे गोबिंद सिंह बद्धा जमपुर जावे। रब की विचार चलती हो विच गल्लां करन लग पवे, कहंदे बद्धा जमपुरी नूं जावेगा। उन्हें संतां ने बड़ा समझाया उन्होंने सेवक नूं। कई सेवक सेवा तो बड़ी करते पर उन्हां दे अंदर मादा हुक्म मनण दा नहीं हुंदा। संतां ने बड़ा समझाया। जे संतां ने कथा करनी उन्हें भांडे मांजण लग जाना, ठा ठा भांडे सिੱਟਣ लग जाना। एक दिन संतां ने सद्दिया, कहंदे रामदासा काका भांडे अगे पिछे मांज लिया कर। संगत आई है, विचार सुनती है, असीं विचार करते हैं। परमेश्वर की विचार करिए, रौला नहीं पाईदा। वो मोहरियों बोलिया, कहंदा बाबा जी तुसीं तां विहले हैं, ਇਹ ਜਿਹੜੇ थोड़े चेले भी ਵਿਹਲੇ ही आ। मैं 20 काम करने, दुध साਂਭਣਾ, भांडे साਂਭਣੇ आ, कोई असर ना किया। एक दिन फिर संत कथा करते सी तो फिर भांडे मांजण लग गया। संत कथा छड्ड के विच ही आ गए, कथा छड्ड दित्ती। फिर आके कहंदे रामदासा
कथा हार गई तुम जीत गए, कथा हार गई तुम जीत गए। कहते तुम तो बांदर चाहिए थे, बांदर नहीं कहा मनता, बंदा तो मन जाता। संतां दी रसना तो निकलिया होया बचन वो शरीर छड्ड के बांदर बन गया। जो जो चितबे साध जन सो लेता मान। साधु महात्मा की रसना ते परमेश्वर बैठा हुंदा, जो वचन कर दिता तत्काल पूरा हो गया। संतां ने कथा करनी, छोटा जिहा एक बांदर का बच्चा मोहरे आके रोज़ बैठ जाना, छोटा जिहा। जिन्ना चिर कथा होनी संतां वल मूँह करके बैठा रहना, उन्हें सारी संगत के मोहरे आके बहना। कथा समाप्त हो जानी तो उन्हें चले जाना। एक दिन संतां ने कथा समाप्त करने तो बाद जिसले बांदर का बच्चा बैठा सी, संत कहते तू रामदास है? वो बांदर के छोटे ਜਿਹੇ बच्चे ने सिर हिलाया, कहता हाँ जी। कहते चलो गलती कर गया, कोई गल नहीं, हुण कथा सुन लिया कर। रब की कथा, परमेश्वर की कथा पाप कर्म कट दिंदी है, जीव नूं भले पासे लै जांदी है। कोट अपराध साध संग मिटे, संत किरपा ते जम ते छुटे। कोई गल नहीं, हुण सुन ला के गलती कर गया, कोई गल नहीं। इदां ही बांदर रोज़ आउंदा रहा तो रोज़ कथा सुन के चले जाता रहा। एक दिन कथा सुनदियां सुनदियां विचे शरीर छड्ड गया। संत कहण लगे चक्को पई इहदा दाह करिए। उन्होंने कपड़ा पा के दफन किया। सो तात्पर्य गल दस्सण दा इह है, परमेश्वर की गल सुन लीए, उहदी सिफत सलाह सुन लीए। मनना ना मनना तो बाद की गल है, सुननी बड़ी कन दे अंदर रब की गल पै जावे। तुसीं मूँह दे विच पानी पा के भावें बाहर सिੱਟ दिओ, असर तो करदा ही है। भावें तुसीं अंदर नहीं भी नगाया, पानी ने असर तो किया ही है। इस तरह भाई रब की गल कन्नां राहीं सुन लीए, किसी की चंगियाई सुन लीए, वो अपना चंगापन छड्ड जाती है। किसी माड़े बंदे दीयां गल्लां करन लग जाओ, अपने अंदर दी निगाह दिओ, अपना माड़ापन छड्ड जांदियां। तुसीं काले कपड़े नूं, काले भांडे नूं अपने नाल दी निगाह के निगाह दिओ, कालक छड्ड जांदा है। जदों आपां लोकां नूं अंदरों माड़ियां गल्लां लोकां दीयां करदे हां, वो अपना माड़ापन मनुख दे अंदर छड्ड जांदियां। जदों असीं किसी दी चंगियाई अपने अंदर दी निगाउने हां, चंगे गुणां नूं अपने अंदर दी निगाउने हां, उन्हां दे गुण भी अपने अंदर महक छड्ड जांदे आ। इस करके रब की उस्तत करिया करो, चंगे पुरशां दी उस्तत करिए, माड़ियां बंदां दी गल, निंदक लोकां दी गल अपने अंदर दी ना नगाइए। इस करके सूही राग, रागां दे अंदर सारी बाणी आधारित है। इक्को एक बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, जपजी साहिब जिहड़ी बाणी राग तो बिना है, बाकी सारी बाणी राग दे विच है। ये रागां दा समा है, किहड़े टाइम ते किहड़ा राग गाउणा है, किहड़े टाइम ते किहड़ा राग गाउणा है। ये रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हदायत है कि गुरु अर्जन देव महाराज जी इस शब्द नूं इस राग विच गाउणा है। जिद्दां आसा जी की बार सवेर नूं गाई जाती है, शाम नूं नहीं गाई जाती, क्योंकि आसा की बार का राग टाइम सवेर का ही है। आसा की बार तो टाइम हैगा सूही राग, वो तो बाद सूही राग 10 बजे तक है। जिहड़ियां लावां ने गुरु ग्रंथ साहिब सूही राग विच ने, लावां 10 बजे तो पहलां पढ़ियां जाण तो गुरु रामदास महाराज की खुशी है। जे 4 बजे पढ़ियां जाण तो फिर उस वेले मारू राग चलदा हुंदा। सो सूही राग खुशी का राग है। उस राग के अंदर गुरु अर्जन देव महाराज ने एक वचन किया है गुरबाणी का, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जो दुख पैंदा सारे रब नूं धिआउंदे आ। जे कोई एक्सीडेंट विचों बच जाए तो साकत पुरुष भी कई बारी कह देंगे भी अज तो रब ने रख लै, अज बचन का हीला तो कोई है नहीं सी, पर रब ने रख लै। ਇਹਦਾ मतलब हरेक दे नाल परमेश्वर हर वेले सर्व व्यापक है, हरेक दे नाल है।
वो कुछ बंदियां दी संभाल करदा, जिहड़े उहदे नाल जुड़ के रहिंदे उन्हां दी संभाल करदा, बाकियां दी संभाल नहीं करदा। जिहदा जिमीदार है, जिहड़ी मੱਝ दुੱਧ दिंदी है उहनूं ज़्यादा वधिया पट्ठे पाउंदा, पेड़ा भी पाउंदा। जिहड़ी दुੱਧ नहीं दिंदी उहनूं हल नूं जोड़ लैंदा, उहदे पट्ठिਆਂ ਦਾ भी बहुता ख्याल नहीं करदा। इस तरह जिहड़ा परमेश्वर दे नाल प्रेम है, उहदे उत्ते परमेश्वर भी अपनी बख्शिश बना के रखदा। दुनिया का इतिहास के अंदर मिसाल है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर एक बचन लिखा होया, पट्टां दी बाणी है। द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, सीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा आपदा ते राखिया, गनका पड़त पूरे ते काज। दुआपर युग दे विच हिंदुस्तान की राजनीतिक सभा के अंदर एक इस्त्री नूं नगन करन दा ऑर्डर दे दिता भी इहदे कपड़े सारे ही उतार दिओ। जिस सभा के अंदर बड़े बड़े महात्मा बैठे सी, भीष्म पितामह वर्गे, द्रोणाचार्य वर्गे, सारी सभा जुड़ी हुई है। तो ऑर्डर राजे ने देता, दुर्योधन ने, भी द्रौपदी नूं केसां तो फड़ के लियाओ तो उहदे कपड़े सारे ही सभा के अंदर उतार दिओ। साध संगत जी, दुनिया के अंदर मिसाल है एक, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया होया। वो द्रौपदी नूं नगन नहीं कर सके, सारे दिन दशासन कपड़े लाउंदा रहा, पर द्रौपदी नगन नहीं हुई। द्रौपदी नालों उच्चा ढेर कपड़ियां दा लग गया, जिहदा जिक्र गुरु अर्जन देव महाराज ने पट्टां दी बाणी विच जिहदा जिक्र है। द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, उन्हों नगन होने तो बचा दिता। जिन्हों कहते जिसके सिर उपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। विधि चंद तरन ताਰਨ के इलाके पट्टी शहर के अंदर अज भी वह पठ बनया होया है। माझे के अंदर पट्ठियां ने दाणियां वालियां थोड़ियां वड्डियां, उहदे विच बंदा वड़ सकदा है। साडे इधर दुआबे में तो छोटियां छोटियां पट्ठियां ने। जदों विधि चंद जी दशाले लैके ते गुरु छेवें पातशाह जी का थापड़ा लैके जिहड़े गहने सोने दे गुरु हरगोबिंद साहिब जी की हुक्म तो बिना लैके आया सी, इन्ना सेक सी भट्ठी दे विच, सारी दिहाड़ी वो भट्ठी चोकदा रहा पठियारा। वो सोना तो पानी बन के तुर गया, पर विधि चंद नूं सेक नहीं लग्या। साहिब गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज भाई की डरोली मालवे विच बैठे सन। अज भी वो गागर हाले उत्थे पई है, जिहड़ी गागर छेवें पातशाह जी महाराज गुरसिखां नूं कहा सी पानी दियां भर भर के मेरे उत्ते पाई जाओ। वो पानी दियां गागरां छेवें पातशाह जी ते पाउंदे आ। इधर भाई विधि चंद नूं सेक नहीं लग्या। इहनूं कहंदे जिसके सिर उपर तू स्वामी, जिहड़ा परमेश्वर का अर्पित हो जाए, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्निया पाइए। जिहड़ा परमेश्वर के नाल अभेद हो जाए, उहदे हर वेले अंग संग परमेश्वर उहदी मदद करता है। प्रहलाद का जिक्र तुसीं सुनते होवोगे। 5 साल का बच्चा सी, उहदे पिता ने कह दिता सी सारी दुनिया के अंदर मेरे नाम तो बिना दूजा कोई भगवान नहीं है, मेरा नाम ही लिया जाए, राम कोई नहीं है। छोटा जिहा बच्चा, उन्होंने की पता कौन है भगवान, कौन है राम। वो तुरिया जांदा जांदे गली दे विच तुरिया जांदा, एक कमरे विचों रोण की आवाज़ आई उच्ची उच्ची। प्रहलाद ने कुंडा खड़काया, कुंडा खड़का के पूछा, सारा टब्बर रोण उच्ची उच्ची। प्रहलाद पूछण लग्या तुसीं क्यों रोंदे हो? वो कहण लगे जी असीं घुमा रहे हैं, असी भांडे बना के रखे हुए सी मिट्टी के, उन्हां दे विच बिल्ली किते अपने बच्चे, बिल्ली नूं आदत है बिल्ली 6-7 जगह ते अपने बच्चों नूं लिजा के रखदी है। कहंदे पहलां भांडे खाली सी, रात किते बिल्ली विच बच्चे रख गई। वो किते भांडा सानूं नेरे दे विच उद्दां ही चिणिया गया, बिल्ली दे बच्चे विचे चिणे गए। असी हुण अग दे बैठे हैं, बिल्ली आले दुआले आवे ते घुमदी है ते रोंदी है। जे हुण असीं आवा पटदे हैं तो साडा बहुत नुकसान ज़्यादा हुंदा।
जे आवा नहीं पटते तो बिल्ली के बच्चे मरते हैं। सानू अज 3 दिन हो गए प्रशादा नहीं छकिया। असी भगवान नूं बेनती करते हैं, राम नूं, उस परमेश्वर नूं, हे राम इन्हां बच्चियां नूं बचा दे, इन्हां नूं सेक ना लगे। प्रहलाद पुछण लग्या राम कौन है? मेरा पिता तो कहता मैं ही भगवान हाँ। वो कहने राम सर्व व्यापक है, हर जगह ते हरेक जीव के अंदर, सारी धरती जिथे कोई नहीं भी जा सकता परमेश्वर उत्थे भी सर्व व्यापक है, कला ही कला सारी सृष्टि विच व्यापक है। कहते असी कल नूं आवा खोलना, असी कल नूं अन्न जल ग्रहण करना जे महाराज ने साडी सुन ली। प्रहलाद कहन लग्या मैनू भी सद लियो कल नूं। दूजे दिन उन्होंने आवा खोलना सी, राजे का मुंडा सी, उन्होंने प्रहलाद नूं सद लिया, कोल खड़ा कर लिया, भांडे कढ़न लग गए, लाल भांडे होए पे आ। लाल भांडे कढ़द्या कढ़द्या आवा सारा एक पासा जदों भांडियां दा रह गया, उधरों भांडे अद्धे अद्धे कच्चे अद्धे अद्धे पक्के आ। भांडे कढ़द्या कढ़द्या जिथे बिल्ली के बच्चे सी वो भांडे कच्चे सी, उन्हां नूं सेक नहीं लग्या, बिल्ली के बच्चे विच उसे तरह बैठे आ। जब उन्होंने भांडा चकिया, प्रहलाद की हैरानी की हद ना रही, भावें छोटा जिहा बच्चा सी। कहता देखो इन्नी अग बलदी विच इहनूं कौन रख गया? उन्हें कहा राम कोई होर है, मेरे पे नूं तां इन्हां बच्चों का पता भी नहीं है, उन्होंने तो इन्हां दी खबर भी है नहीं। जिहड़ा परमेश्वर है उन्होंने सारी सृष्टि की खबर है। तू सच्चा साहिब सिफत सहालियों जिन कीती सो पार पिया। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई, तू करता करना मैं ना जाहों करी न होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहाऊ। जात मैं जोत जोत मैं जाता, अकल कला भरपूर रहा, सारी सृष्टि विच कला ही है। ये उत्ते अध कला के पढ़ना है, यदा अर्थ तां बनूगा। जे अकल कला पढ़ूंगे तो अर्थ नहीं बनूगा। ਇਹਦਾ जे अर्थ बनाइए तो अकल कला सारी सृष्टि में कला ही है, वो बराबर की कोई ताकत नहीं है। प्रहलाद के दिल से सट लग गई। उन्हें कहा देखो अग बलदी में बच्चियां रखण वाला एक राम होर है, मेरा पिता नहीं इन्हों जान सकता। उन्होंने वढ़ण भी तलवार भी कढ़ी, अग में भी सिटिया, बड़ी कोशिश की प्रहलाद नूं मारन की, पर प्रहलाद मरिया नहीं है। ਇਹਦਾ जिक्र गुरु अर्जन देव महाराज ने अपनी पवित्र बाणी में सूही राग में किया, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। महाराज माया के नशे में असी मद माता हुंदा मस्त होया, जे इहनूं कोई पता ही नहीं लगे रब कोई हैगा कि नहीं। कई बंदियां नूं थोड़ा धन मिल जाए सुख मिल जाए रब नूं वसार दिंदे आ। कई धनिया ते भी कृपा हुंदी है कि राजे भी धार्मिक पक्ष के अंदर बहुत सेवक ने, कई गरीब होने के बावजूद भी नास्तिक ने, जिन्हां ते कृपा है परमेश्वर नूं आराधदे है। जिहड़े माया के नशे में मद होके मस्त होके आ जिहड़ा हुण किसान अंदोलन चल रहा है, माया के नशे में नहीं तो होर की है। राजे लोग बोल न जाने माया मद माता। महाराज माया के नशे में कोई थोड़े सामने महाराज साडा बोलना भी बड़ी औखी गल है। मनुख रब की सिफत की करनी है, मरना चेत ना आवे। माया के नशे में ग्रस्त होया, इनू मरना चित कित्थे आउंदा? जे मरना चेते आ जाए फिर तो संसार में कोई गल हुंदी ही नहीं है। मनुख माड़े कर्म वाले पासे नूं जांदा ही नहीं है। जिहनूं मरना विसर गया वो मनुख कर्म माड़े करन लग जाता। जिन्हों मरना चेते है वो मनुख माड़े कर्म नहीं करता। जिन्हों पता जिन्हें चलन जानिया से क्यों करे बथार, चलन सार न जानी काज सवार न हार। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे। गुरु अर्जन देव महाराज कहते है निरंकार है परमेश्वर, तू संतां दा ते संत तेरे। तुसीं देखो जिहदा किसी दा दोस्तों का प्रेम हो जाए वो कहता भी मेरा सारा कुछ तेरा ही है, वो एक दूजे ते जान देने को तैयार होंगे।
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਥਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਬੈ ਭਗਤੈ ਜਨਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਅਰਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਜਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਅਰਜਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕੁੰਠ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਿਆ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਰਜਨ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਬਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਹਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਧੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬਾਂਧੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ ਗਿਆ ਬਾਂਧੇ ਫਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੀਭ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਰਬਾਸਾ ਰਿਖੀ ਨੇ ਜੀਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, 56 ਕਰੋੜ ਯਾਦਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਯਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ। 56 ਕਰੋੜ ਯਾਦਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ 2.5 ਚੂੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸਗਰ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 60,000 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 60,000 ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਪਇਓ ਉਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਠੀ ਤਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
परमेश्वर के प्रेम विच बाणी पढ़ी जाए फिर परमेश्वर प्रेम दिंदा। जे प्रेम तो बिना भावना रख के बाणी पढ़ी जाए फिर भावना पूरी हो जाती है। वो भी भावना रख के शुद्ध भावना ना पढ़ी जाए तो भावना पूरी होंदी है। जे विच होर कुछ इधर उधर घूमदा रहे बाणी जीभ जपदी रहे उसका कोई लाभ नहीं हुंदा। तो इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज ने बहुत तू संतां का महाराज तू संतां दा है, संत तेरे अर्पण है, तू संतां दे अर्पण है। तेरे सेवक को भौ किश नाही जम नहीं आवे नेड़े। तेरे सेवकां नूं दुनिया में जिन निरभौ जिन हर निरभौ ते आया जी तिनका भौ सब गवासी। आरे ना चीर देना बड़ी मुश्किल गल है बंदे नूं। जिन्होंने भौ आया ही नहीं आरे ना सामने चीरता गुरु तेग बहादुर साहब जी दे रूम में बन के अग लाती। घबराए नहीं डरे नहीं, वो डरे नहीं। भाई दयाला जी ने उबलती देग में बाल दिता। बंदा नहीं उबल सकता। बंदे तो उंगली उबलते पानी में पै जाए सड़ू सड़ू करनों हटती नहीं है। बंदे नूं पानी में बैठ के बाद ना बंदा नहीं उबल सकता। ये बंदा जिन्हां दे अंदर परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर प्रवेश कर जाता है उन्होंने अग नहीं जाल सकती। जल ने डूबे तस्कर नहीं लेवे पाहे ना साके जाले। अग ने अग नूं की कहना। जिहड़े हुक्म दे अंदर सारी पै विच पवन बहे चा सदबाओ पै विच चले लख दरियाओ। पै विच अगन कढ़े बेगार पै विच धरती दब्बी पार। पै विच इंद फिरे सिर पार पै विच राजा धर्म दवार। पै विच सूरज पै विच चंद को करोड़ी चलत नांत। पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच अडाणे आकाश। पै विच जोध महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर। सगले आपो लिखिया सरलेख नानक निरभौ निरंकार सच एक। सारी दुनिया सारी पै विच है। सूरज चंद्रमा पै विच एक मिनट भी अग्गा पिछा नहीं करते। किन्ने युग हो गए इन्हों चढ़दियां नूं। सारी धरती पै विच खड़ी है। जिदा बाकी तारे थानू ब्रह्मंड में दिखते इदा ये भी एक तारियां मंगर ब्रह्मंड के विच डामाडोल खड़ी है। यह जिन्ने थानू उपर तारे दिखते सारियां धरतियां ने आकाश पताल ने सारे देखण नूं छोटे छोटे दूरों थल्लियों साडी धरती भी इस तरह दिखती है। ये सारी भै विच खड़ी है। जे भै पानी नूं ना होवे तो 16-16 फुट धरती ते पानी घूमे। 999 नदी हर रोज़ समुद्र विच डिगदी है। समुद्र का पानी उछल उछल के सारा दुनिया नूं डोब देवे। दुनिया बस नहीं सकती इस धरती के उत्ते जिन्ना पानी है। 3 गुणा पानी है 2 गुणा धरती है। 999 नदी का पानी हर रोज़ समुद्र विच पैंदा पर उन्होंने समुद्र उछलता नहीं है। इस करके रब के भै दे अंदर तू संतां का संत तेरे सेवक को पौ किश नाही। जिहड़ा महाराज तेरे नाल भेद हो गया उन्होंने भै काहदा। उन्होंने अग साड़ नहीं सकती पानी डोब नहीं सकता। प्रहलाद नूं अग विच भी सिटिया अग ने साड़िया नहीं। पहाड़ तो भी सिटिया उन्होंने सट लगी नहीं। बड़ी कोशिश की प्रहलाद नूं मारने की मरिया नहीं आ। वो कहता मेरा ये बाल बिंगा नहीं कर सकता। निरभौ परमेश्वर निरंकार नूं निरभौ जपे सगल भौ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। निरभौ निरंकार नूं जपना वो मनुख भी निरभौ हो जाता। जिन्ना चिर वो बाणी घट पढ़ता है प्रेम नाल नहीं पढ़ता वो अंदर डर बनिया ही रहिंदा। डर राजे नूं भी है डर गरीब नूं भी है डर अमीर नूं भी है। अमीर नूं डर है पैसे लुकाउण दा। गरीब नूं डर है वड्डियां तो भी मैनू खा जाणगे मैनू टैक्स ला देणगे। हरेक बंदा भै विच है। जिहड़े भगत है वो भै विच नहीं। रब की बंदगी वाले भै विच नहीं। रब की बंदगी वाले परमेश्वर का भै जिन्हां ने मन्निया उन्होंने दुनिया का भै उन्होंने उन्हां दा मन लिया। संत महाराज जी हरखो वालिए वो कहते हुंदे सन साधु नूं तलवार पाउण की जरूरत नहीं है। कहते साधु की जबान तो दुनिया डरे तलवार तो शायद बंदा बचे जाए। वो जबान तो दुनिया डरती जी जीभ तो बोल दिता वही कुछ हो जाना। 56 करोड़ यादव एको बार जीभ तो बोलिया दरबासा लिखी ने 56 करोड़ हिंदुस्तान की धरती ते मर गया। एको बार जीभ तो वचन बोलना नाले तत्काल पूरा हो जाना। रब की बंदगी वाले पुरुष है उन्होंने शास्त्र चक्कण की जरूरत है। शास्त्र तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सिखां नूं फड़ाए है जिन्हां दे विच कमी है
कि शस्त्र नाल भी मारो तो बंदगी करके पाई आत्मा निरभव कर लो। फिर जे भावें बंदे नूं मारना पाप है, बहुत सारे लोग कहते गुरुआं नूं बंदे मारे है, ये गल का चेता रखियो। कुत्ते नूं मारन दा पाप है, या तुसीं हल्के कुत्ते नूं मारदे सारे लोग चंगा गिणदे आ, कहते बाकियां नूं वड्ढूगा, बिमारी फैलाऊगा। इस करके जुलमी लोगों नूं मारन वास्ते हदायत की है गुरुआं पीरां ने। राम जी महाराज ने युद्ध किया, भगवान कृष्ण ने किया, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने किया। जिहड़े दुनिया नूं दुख देण वास्ते दुख दिंदे उन्हां नूं मारन वास्ते गुरुआं पीरां महात्मा ने पापी लोगों नूं, जिहड़े दुनिया नूं दुखी करदे सन, दुष्ट लोग सन, उन्हां दा संघार किया। संतां दी संत उबारन दुष्ट उपाड़न, दुष्ट सबन की मूल उपाड़न। धरन चरावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपाड़न। कहते दुष्टां की जड़ पट्टण वास्ते 10वें पातशाह कहते साडी जन्म होया, धर्म चलाउणा, संतां की रखिया करनी ते जुल्म की जड़ पट्टनी है। यही जाही काज धरा हम जन्मं, समझ लिहो साधु सब मन मंग। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते इसे करके साडा जन्म होया। ਤਾਂ सतगुरु जी कहते तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमने आवे नेड़े, जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। जेड़े महाराज तेरे रंग में रते गए उन्हों का जन्म मरण का दुख खत्म है। मर्जी ना आ जाते, मर्जी ना चले जाते, मर्जी ना जन्म लेंदे, कित्थे लेना कित्थे नहीं लेना। तेरी बख्श ना मेटे कोई सतगुर का दिलासा। तेरी बख्शिश नूं कोई मेट नहीं सकता, दुनिया का राजा भी नहीं मेट सकता। दुनिया का राजा भी होवे तेरी बख्शिश नूं नहीं मेट सकता। नाम ध्यान सुख पल पायन, 8 पहर आराधे। जिन्हों ने नाम नूं ध्याना कीता उन्होंने सुखां की प्राप्ति की है। जिन्हों ने 8 पहर तेरा आराधन किया उन्होंने सारिया सुखां की प्राप्ति की मिली है, सारे सुख मिले। 8 पहर आराधे तेरी बख्श तेरे परवासे, 5 दुष्ट लै साधे। महाराज तेरी बख्शिश ना ਇਹ 5 काम क्रोध लोभ मोह हंकार ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ बस ਵਿੱਚ नहीं आते। एक साधु महात्मा की कृपा जिन्हों के बस में आए है, बाकियों के बस में नहीं आए, नहीं अपने बस में दुनिया की हुई है। अंदर छुप के बैठे रहते, जदों की खुराक मिलती उठ के खड़े हो जाते। अंदर पंजे ही ने हरेक के अंदर ने, जदों की खुराक दिसदी है उठ के खड़ा हो जाता। जब बगाना धन दिसदा लोभ उठ के खड़ा हो जाता, पराया रूप दिसदा उठ के काम खड़ा हो जाता। इदां पंजे अंदर बैठे है, जदों खुराक मिलती उठ के खड़े हो जाते। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना। महाराज ज्ञान की गल, जे ध्यान लाउण की गल, जे कोई कर्म चंगा कर्म तुसीं कहो, ये तो मैं गल्लां जानदा नहीं है, सार ना जाना तेरी। थोड़ी महाराज किड्डे क बड़े हो तुसीं, किड्डा क तुहाडा पसारा है, ये गल्लां महाराज मैं नहीं जान सकदा। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सारी सृष्टि विचों गुरु नानक आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। सब तो बड़ा निरंकार गुरु नानक का रूप गुरु ग्रंथ साहिब जी। जे कोई चाहता मैं निरंकार नूं मिलना, निरंकार के दर्शन करने, गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तिस जे बडावर ना कोई। बाणी निरंकार का स्वरूप है। जिन्हें निरंकार नाल जुड़ना बाणी पढ़िया करो। बाणी पढ़ोगे निरंकार नाल जुड़ोगे। जिन्ना तुसीं किसी को ज़्यादा जाओगे उन्ना ज़्यादा प्रेम बन जाऊगा, जिन्ना घट जाओगे टैलीविजन ज़्यादा देखोगे लोगों ना प्रेम बन जाऊगा। बाणी ना ज़्यादा जुड़ोगे बाणी ना प्रेम बन जाऊगा। ये तुहाडी अपनी सोच है। इस करके गुरमुखो सतगुरु अर्जन देव महाराज जितनी बख्शिश महापुरुषों ने, संत महाराज जी हरखोवाल जी जिन्हें उन्होंने बख्शिश की है, उहदे अनुसार समूह संगत ने बचन किए ने। बाकी भाई रागी सिंह जिन्ना समा तुसीं बैठोगे ठीक है, बैठना भावें बड़ी मुश्किल गल है अजकल के दौर के अंदर, पर हस्पतालों में कोई बहना सौखा नहीं है। उत्थे तो भावें 10-10 दिन गुजर जान बंदा बह लैंदा। गुरु घर में बह लिया करो, औखे होके भी बह लिया करो। हस्पताल बहन नालों सौखा, उत्थे जाके हाय हाय करन नालों लम्मे पैण नालों उत्थे नालों सौखा। जिन्ने साह तुसीं इत्थे बतीत कर लोगे उधरले साह कट्टे जाणगे दुख वाले।
ਹੋਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ नहीं, मत भुलेखा किसी रह जाए पैसों वाले, ये मुंडियां दा किता राग दा नहीं है, ये तो सिर्फ साडे सेवादार है, ये अपना काम करते हैं, किरत करते हैं। रागी सिंह तो इन्हां दा सिर्फ प्रेम का कीर्तन है। जे तुसीं एक शब्द कहोगे एक पढ़ देणगे, दो कह दोगे दो पढ़ दोगे, पैसे बेशक ना देण उठिओ, पैसे लैण नहीं आए। ये तो कुड़ी साडे गुजरपुर वाले जिन्हां दी लड़की है, वो साडे प्रेमी है, स्थान ते जांदे है, उस लड़की करके असी उहदे प्रेम करके ये नौजवान प्रेमी है साडे स्थान ते आउंदे है, उन्हां करके असी आए हैं। इस करके रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ कीर्तन जिन्ना भी समा तुसी कहोगे ठीक है, रोटी पानी रोज़ खाने हैं, ये सिंह कीर्तन करनगे। जदों तुसी कह दोगे नहीं तो उस वेले बंद कर देना इन्होंने। कोई ये ना गल करियो भी पैसे देण उठना पे रागी, कोई जिन्ना समा प्रबंधक कहणगे उन्ना चिर ला लैणगे। ते बाकी भाई कीर्तन तो ठीक है, रब की बख्शिश है, ਕੰਨ ਦੇ अंदर की बाणी नगा लीए, जीभ नाल भी बाणी अंदर जल जाती, कन्ना राही भी अंदर चले जाती है। रबी रंग में किया होया प्रेम का कीर्तन है। सुन लिओ, उदा बहुत लोगों को शंका ही रहिंदी है फिर रागी पैसों वाले है, पैसे देण बेशक ना उठिओ, कोई गल नहीं, वो मंगते नहीं है, पैसों वाले आए भी नहीं है पैसों वास्ते। इन्होंने तो उधर जाना सी, अज इत्थे आउण करके इन्हां दे सद्दे पत्तर करके आ गए आ। ये तो उधर दिल्ली नूं जा रहे थे, ये गड्डी चलाउंदा मुंडा, ये अपनी टैक्सियां चलाउंदे आ, इन्हां दा किता कीर्तन नहीं है। ये तो जिथे कोई प्रेम वाला होवे उत्थे ही जांदे साडे नाल, उधर किते जांदे नहीं है। मत भुलेखा किसी नूं रहे भी रागी पैसों वाले ही है, नहीं बीज नास नहीं है, विच पहना पैसों तो रागी भी हैगे आ। सो सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी, सारी संगत रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।